everyone, my name is Premada. Welcome back to World Student Scope. Today in this session, we are going to start with the new chapter, that is chapter number 3. The name is Synthetic Fibers and Plastic. So basically in this chapter, हम बात करने वाले हैं कि fibers तो हमें पता है, right? हम जानते हैं fibers क्या होते हैं and how and where they are used, right? Let's, for example, wool है, silk है, we already studied about this, right? But in this chapter specifically, we are going to talk about synthetic fibers and synthetic fiber meaning which are man-made, which are not natural. तो हम ऐसे fibers की बात करेंगे जो natural नहीं है, still we use it and we actually use it in our day-to-day life on a very large scale, right? And apart from that, हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक्स की कि प्लास्टिक्स कहाँ से आते हैं, क्या यूसेज होते हैं, कितने टाइप के प्लास्टिक होते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बट आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ठीक है? सो टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. सो लेट अस नाउ बिगिन. Now introducing you with the synthetic fibers first. So what is that? Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Fabrics सबको पता है बेटा, fabrics कहाँ यूज होते हैं? Fabrics यूज होते हैं जनरली क्लोथिंग में, राइट? तो fabrics बेटा हमें कई तरीके से मिलते हैं. We have studied कि natural fibers हमें कहाँ से मिलते हैं. We get it from camel and goat, yak. From all these places we get the fibers and silk from the silkworm, right? And obviously from the artificial sources जिसके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है? उसके अलावा fibers are also used for making a large variety of household articles. Fibers बहुत सारे household articles बनाने के भी काम आते हैं. Let's suppose, जैसे हम एक दो examples करेंगे. For example, bedsheet, right? And bedsheet can be of wool या फिर cotton की bedsheets भी होती हैं, right? And shirts, cotton. And what else do we wear? हम स्वेटर भी पहनते हैं. In winters तो वो कैसा होता है? वुलन होता है, right? Alright, उसके अलावा हम पहनते हैं साड़ीज. वो किसकी होती हैं? सिल्क की होती हैं. Alright, and उसके अलावा हमारे पास ropes हैं. ropes होते हैं, वो भी sometimes we can say artificial ropes भी होती हैं, तो हम कह सकते हैं they are made up of nylon maybe. Yes. So all these things we use in our day-to-day life. इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई है, if you know about any other item or article that you use in your day-to-day life, then you can write it down as well. All right? Okay. So let us start with the synthetic fibers now. So a synthetic fiber is a chain of small units joined together. Now let us look at this image. So as you can see कि आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सिंथेटिक फाइबर्स का. तो अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अगर, तो हमें ये दिखता है कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स एक चेन की तरह अटैच्ड होते हैं, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है दोनों में. तो यू कैन सी हाउ स्मॉल यूनिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर जॉइंड टुगेदर फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन. ऑलराइट, बट each small unit is a chemical substance. So if you talk about it, this particular part, अगर आप सिर्फ इसकी बात करते हो तो we can say that these are the chemical substance. तो इसका मतलब ये हुआ कि small unit of chemical substances are joined together to form a long chain. वो synthetic या chemical substances आपस में join करके long chain बनाते हैं, right? And many such small units combine to form a large single unit called as polymer. तो यहाँ पे जो बेटा हमें बात याद रखनी है, जो टर्म याद रखना है, वो याद रखना है हमें पॉलीमर. तो पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच मेक योर सिंथेटिक फाइबर्स. क्लियर? जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाता है, राइट? अब ये बात आ जाती है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफी. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. क्या? दीज आर दी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि सिंथेटिक फाइबर्स के कितने टाइप होते हैं, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेयॉन. अब ये रेयॉन है बेटा, रेयॉन ऐसा दिखता है. दिस इज अ सिंथेटिक फाइबर. ये क्लोथिंग है बेटा, ठीक है? एंड
scientist was successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. And you can see कि rayon जो है वो थोड़ा silk like है ना, silk जैसा दिखता है. तो scientist ने they were able to, because scientists keep on researching, तो उन्हें रिसर्च करते करते दिखा कि ओ ये भी एक ऐसा मटेरियल जो सिल्क की तरह दिखता है, राइट? एंड दे कॉल्ड इट एज rayon. So such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. जो वुड का पल्प होता है बेटा, वुड का जो इनर पार्ट होता है, वुड का पल्प, उसको जब केमिकली ट्रीट किया गया, फिर तो हमें क्या मिला वहां से? हमें वहां से मिला रेयन, राइट? So that is how rayon has obtained. Now this fiber was called rayon or artificial silk. इसको और क्या बोला गया? Artificial silk. It is not a natural silk. That is why उसको नाम हमने दे दिया artificial silk का, but उसको बोला क्या जाता है? Rayon, right? And one more thing, that it is a man-made fiber. Obviously, why? Because it is chemically treated. इसकी chemically treatment हो रखी है बेटा, right? So because it is chemically treated, that is why it is called as man-made fiber. And it is cheaper than silk. क्योंकि बेटा सिल्क को आपको पता है, सिल्क हार्वेस्टिंग में कितना लंबा प्रोसेस लगता है. सिल्क वॉर्म ग्रो करते हैं, खाते हैं मलबरी लीव्स, ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड देन यू गेट द सिल्क. बट ऑब्वियसली बेटा मैन मेड प्रोसेस है, एंड आप जब चाहे वुड पल्प को लेके आओ, जब चाहे उसको आप ट्रीट करके आप उसको कन्वर्ट कर दो आर्टिफिशियल सिल्क में. सो दैट इज वाई इसका प्राइस जो है इट इज क्वाइट चीपर देन द सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स. जैसे सिल्क फाइबर्स को हम वोव करते हैं और बनाते हैं, सिल्क की क्लोथिंग बनाते हैं, सेम तरीके से आप रेयन के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हो, एज वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस इमेज, राइट? एंड रिमेंबर दैट इट कैन बी डाइड इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स. आप उसको बहुत सारे कलर्स में चेंज कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है रेयन टाइप ऑफ ऐसा है सिंथेटिक फाइबर जो डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल होता है मार्केट्स में, राइट? उसके अलावा रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स, मिक्स्ड विद वूल टू मेक कार्पेट्स. इसके अलावा रेयन की बेडशीट्स भी बनती है, बहुत सुंदर सुंदर बेडशीट्स होती हैं, एंड ऑल्सो इट इज मिक्स्ड विद वूल टू गिव इट अ लिटिल स्मूदर टेक्सचर. ऑलराइट, सो यू हैव एन एग्जांपल हियर. कार्पेट्स में भी रेयन यूज होता है, एंड अदर बेडशीट्स एंड अदर क्लोथिंग्स में भी you can use rayon, right? Next आ जाता है बेटा नायलॉन. अब बात करेंगे हम नायलॉन की. So क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, so understand and know this कि नायलॉन is also a man-made fiber because it is a synthetic fiber. But इसको थोड़ा differently prepare करते हैं हम. It was prepared from coal, water and air. कोल और पानी और एयर के साथ मिक्स करके रिएक्ट करवा के we get the nylon, right? And it was the first fully synthetic fiber. ये सबसे पहला fully synthetic fiber है. And this is the image of nylon as you can see in front of you. ये nylon की image है. Clear? Now, nylon fiber is strong, elastic and light. आपने देख ही रहा होगा. नायलॉन की इमेज से ही आपको पता लग रहा होगा. This image I am talking about. कैसे आपको ये प्लास्टिक लग रहा है और strong है, elastic है, and it is quite light also. Now it is lustrous, काफी shiny भी हमने देखा, and easy to wash, right? ये सब इसकी properties हैं that you must remember, क्योंकि आपको पूछ लिया जाता है. Sometimes आपको reasoning में ऐसे questions आ जाते हैं, तो आपको ये सारे parts पता होने चाहिए, right? And nylon with growing areas, with growing ears, it has become very popular for making clothes. क्लोथिंग के लिए बहुत पॉपुलर हो गया. फॉर एग्जाम्पल सॉक्स कैन बी मेड अप ऑफ नायलॉन, रोप्स हैं, टेंट्स हैं, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन. कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें. सॉक्स भी नायलॉन की मिल जाती है आपको. टेंट्स जो होते हैं जिसमें लोग कैंपिंग करते हैं, वो टूथब्रशेस के जो नीचे वाला पार्ट होल्डर होता है, दैट इज मेड अप ऑफ नायलॉन. कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ये देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. सारे वेरियस आर्टिकल्स मेड अप ऑफ नायलॉन. यहाँ पे आपको कर्टन्स दिख रहे हैं, सॉक्स हैं, रोप्स हैं, टूथब्रशेस हैं. ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन. ऑल्सो नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स. अब देखो ये पैराशूट का है ना फोटो, आपको ये जो दिख रहा है, दीज आर द पैराशूट्स. इसमें जो ये पैराशूट है वो किसका बना हुआ है? नायलॉन का. एंड द रोप्स हियर फॉर रॉक क्लाइंबिंग आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक. क्योंकि अब देखो इतने हैवी लोगों को होल्ड करके रखना कोई आसान बात नहीं है. बट नायलॉन बीइंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इट कैन होल्ड सच काइंड ऑफ heavy weights, so that is why it is used as parachutes and ropes. Clear? उसके अलावा a nylon thread is actually stronger than a steel wire.
कैन यू बिलीव दैट? एक स्टील की वायर से ज्यादा स्ट्रांग होता है नायलॉन थ्रेड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। इसी वजह से आप देखो इतनी हेवियर चीजें पुल करने के लिए एंड इतने हेवी और टफ टास्क के लिए हम नायलॉन के रोप्स भी यूज करते हैं, राइट? तो लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी which is based on our topic synthetic fibers. Now what we have to do is measure the strength of various fibers such as cotton, wool, silk, nylon with the help of iron stand with a clamp. ये आपके पास आयरन स्टैंड है बेटा, आयरन स्टैंड है ये, यहाँ पे आपको क्लैंप भी लगा हुआ है, क्लियर? ये क्लैंप भी लगा हुआ है आपका। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली स्ट्रेंथ मेजर करनी है। स्ट्रेंथ मेजर करनी है किन किन फाइबर्स की? वी हैव टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, इन सारी चीजों की हमें स्ट्रेंथ मेजर करनी है, ठीक है? और कैसे करनी है मेजर हमें स्ट्रेंथ? हमने क्या करना है, आयरन का हमने पीस ले लिया है, उसको हमने थ्रेड से बांधना है एंड ये थ्रेड्स बेटा किसी के भी हो सकते हैं, ये थ्रेड्स इनमें से किसी के भी हो सकते हैं। यू कैन यूज इट वन बाय वन। एक बार कॉटन का थ्रेड ले लो, एक बार वूल ले लो, एक बार सिल्क ले लो, एक बार नायलॉन ले लो एंड यू अटैच इट विद द आयरन, ठीक है? एंड यू सी कि कितना जो वेट है वो इनमें से कौन सा थ्रेड सबसे ज्यादा होल्ड कर लेता है एंड कौन सा ऐसा थ्रेड है वो जो सबसे जल्दी ब्रेक कर जाएगा, ये आपको मेजर करना है, ठीक है? एंड उसके हिसाब से यू हैव टू अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, कि सबसे कम किस में से है से लेकर सबसे ज्यादा किस में स्ट्रेंथ है, ये आपको डिटरमाइन करना है इस एक्टिविटी में, क्लियर? सो इफ यू ऑब्जर्व बेटा, हमारी ऑब्जर्वेशन का अगर हम करते हैं हमारे हिसाब से, तो होना क्या चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वेट है, सबसे ज्यादा वेट जो होल्ड करेगा वो करेगा नायलॉन, इट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। हमें पता ही है, हम पढ़ ही रहे हैं बेटा कि नायलॉन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आता है बेटा वूल। वूल का जो भी थ्रेड है इट इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्गर एंड वो 70 ग्राम्स तक का वेट होल्ड कर सकता है, वेयर एज नायलॉन एज यू कैन सी इट कैन होल्ड द वेट ऑफ 100 ग्राम्स। उसके बाद आता है सिल्क। सिल्क जो है 50 ग्राम्स वेट तक होल्ड कर सकता है, इट इज क्वाइट दैट स्ट्रॉन्गर। एंड कॉटन बीइंग द वीकेस्ट, it only holds for 12 grams and after that it breaks. So that is how we have to see and weight observe करना है। अच्छा, you can perform this at your home also, right? अपने घर पे भी आप इसको perform कर सकते हैं and then you can determine the weights of these particular threads, right? तो observation में क्या बेटा हमें दिखता है that cotton holds the lowest weight while nylon shows it's the strongest. कॉटन ने सबसे कम वेट होल्ड किया 12 ग्राम्स, whereas nylon held for about 100 grams. Clear? So the tensile strength of the following four in ascending order is, tensile strength मतलब क्या? होल्डिंग कैपेसिटी, वेट होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे ज्यादा कम कॉटन है, फिर सिल्क है, फिर वूल है एंड एट लास्ट नायलॉन है। नायलॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था बिकॉज उसने सबसे ज्यादा वेट होल्ड करके रखा। क्लियर? अब बात करेंगे बेटा पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक की, विच इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर। ये पॉलिएस्टर बेटा आपने इसको जैकेट्स में भी देखा होगा। पॉलिएस्टर आपने क्या देखा होगा, आपने जैकेट्स में भी, ब्लेजर्स में भी आपने देखा होगा जिसके ये बने होते हैं, ठीक है? एंड दीज आर द फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। ऐसे क्लोथिंग में रिंकल्स नहीं पड़ते, जैसे कॉटन की क्लोथ में आपने देखा होगा, आप उसको कहीं रखो या वॉश करके लेके आओ तो उसमें कितने सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, बट नॉट इन दिस केस। पॉलिएस्टर के केस में ऐसा नहीं होता। पॉलिएस्टर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें इजीली रिंकल्स नहीं पड़ते हैं एंड बहुत क्रिस्प रहता है। इट रिमेन्स क्रिस्प, वेरी क्रिस्प एंड इट इज क्वाइट एंड इजी टू वॉश, राइट? नाउ अमंग दीज टायरेलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। ये टायरेलीन है बेटा, टेरिलीन है बेटा, ये सबसे फेमस पॉलिएस्टर है and it can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. बहुत फाइन फाइबर्स में इसको आप यार्न में कन्वर्ट कर सकते हो एंड काफी फाइन फैब्रिक बनता है टेरिलीन की वजह से, which is quite a popular polyester which you can see in front of your screen. Now अब आता है बेटा पेट, that is polyethylene terephthalate. इसका नाम क्या है पेट का? polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester
एंड ये ऐसा पॉलिएस्टर है बेटा जिसका नाम है पेट, ये आपको इस नाम से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको नाम लर्न करना पड़ेगा बेटा। पॉलीइथाइलिन, जिसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थिलेट, जो बहुत ही फेमस पॉलिएस्टर है, एंड ये किस चीज में हेल्प करता है, किसके काम आता है, यू कैन मेक बॉटल्स आउट ऑफ इट, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ये आपके सामने इमेज दिख रही है, ये किससे बने हुए बॉटल्स बेटा, पेट से, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थिलेट से बनी हुई हैं बॉटल्स, which is a synthetic fibers, right? Now acrylic is relatively cheaper than wool. अब एक्रिलिक की बात कर लो बेटा, देखो ये एक्रिलिक है, एक्रिलिक कैसा दिख रहा है आपको, एक्रिलिक कुछ ना कुछ हल्का सा ना उसकी तरह दिखता है, वूल की तरह, वूल लाइक होता है, वूल लाइक। लेकिन जैसे हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था, दैट अगर हम देखें तो सिल्क से चीपर था, है ना। आपने सबसे पहले क्या, आपने रेयन पढ़ा था, रेयन, तो रेयन सिल्क से चीपर था। सेम एज एक्रिलिक यहाँ पे चीपर होता है एज कंपेयर टू वूल, बिकॉज इट इज मैन मेड। और इससे बनते क्या है, एक्रिलिक से आप बना सकते हो बेटा स्वेटर्स, यू कैन मेक शॉल्स, यू कैन मेक वेरियस ब्लैंकेट्स, यू कैन मेक, these all things are made up of acrylic, ठीक है, which is obviously cheaper than the wool, right? अब बात कर लेते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की, कि बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। सो लेट अस स्टार्ट नाउ दैट दे ड्राई अप क्विकली। सिंथेटिक फाइबर्स की ये तो अच्छी क्वालिटी होती है बेटा कि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, वेयर एज अगर आप कॉटन और एक्चुअल वूल देखो तो उनको सूखने में कितना टाइम लगता है, बट नॉट विद दिस केस। सिंथेटिक फाइबर्स बहुत जल्दी ड्राई अप होते हैं, दे आर ड्यूरेबल, जल्दी टूटते नहीं हैं, लेस एक्सपेंसिव, जैसे एक्रिलिक हो गया, रेयन हो गया, थोड़े सस्ते होते हैं, रेडिली अवेलेबल, वेट नहीं करना पड़ता सीजन का कि अच्छा कब सिल्क वॉर्म आएगा, कब हमें सिल्क मिलेगा, नो, आप फटाफट उसको केमिकली ट्रीट करो क्योंकि मैन मेड होते हैं और जल्दी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, एंड दे आर इजी टू मेंटेन, इजीली मेंटेन भी हो जाते हैं, अब उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं है, प्लस अगर खराब हो गए तो यू कैन ऑलवेज बाय अ न्यू वन, राइट। उसके अलावा फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन कैचिंग फाइबर एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वियरिंग इट, बट इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स पहन के आप किचन में काम करने जाते हो या यू डू एनीथिंग व्हिच इज इफ यू आर नियर बाय एनी फायर, तो that fire can easily catch up the cloth and it may burn the whole body, which is not a very good thing obviously, but it is a property of this fiber. So synthetic clothes should not be worn while working in the kitchen or in the laboratory. इसलिए कभी भी अगर आप किचन में भी जा रहे हो या इफ यू आर बड़े हो के आप कोई लैबोरेटरी वर्क भी करते हो तो you don't have to or you shouldn't wear synthetic clothes in that case, right? So yes, this was all about this lecture. हमने पढ़ा अभी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, we discussed about it, and in the next lecture we are going to discuss about the plastics, उसके usage and उसके और harmful effects, all these things हम पढ़ेंगे in the next lecture. Till then, keep studying, keep spreading the knowledge, and I'll see you in the next lecture. Thank you.